जो आपकी जर्नी 2008 से 2025 तक कैसी रही है? How I came into civil services is also one, different kind of a story. I was qualified in 2008. My cadre which was allotted was Tripura. स्पेशली वो स्पेशल मेरे लिए क्यों रहा, क्योंकि वो एरिया, उस तरीके का एरिया मैंने कभी पहले नहीं देखा था. सो सिस्टम वुड हैव इट्स ओन प्लस एंड माइनस. हाउ डू यू लिवरेज थ्रू द चैलेंजेस, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया में हर तरीके का डायनामिक्स काम करता है. तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कम्युनिकेशन शुड बी वेरी क्लियर. मेल डोमिनेटिंग फील्ड में क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं फीमेल ऑफिसर्स को? आई मीन इफ़ यू आर वर्किंग एज अ डीसी, तो चाहे वो मेल ऑफिसर हो चाहे फीमेल ऑफिसर हो, यू हैव सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी. टू बी अ वुमेन is to embrace the complexity of life, to love fiercely and rise time and time again despite the odd. एक औरत ही शक्ति, संपत्ति और सद्बुद्धि है. Happy Women's Day to all and welcome to KRMU Time. And this podcast is under Shiro campaign, which is an initiative of KR Mangalam University to raise awareness about female education, highlight scholarship available for women, and build a supportive, inclusive community for women. I, Kanishka Bhandari, is honored to welcome Ms. Sonal Goyal, IAS officer, 2008 batch, published author, trained company secretary, qualified lawyer, TEDx speaker, and she was among top 25 women transforming India by Niti Aayog and the United Nations in 2017. Welcome you, ma'am. Truly an honor. Thank you so much, Kanishka. And I am in fact very delighted, very much delighted to be at this very esteemed platform. And as we are all celebrating the International Women's Day, it is indeed, I would say, much required and an imperative initiative. And the title is very exciting. The title is, in fact, the Shiro's campaign, Yeah. which you mentioned. And I look forward to this discussion. थैंक यू सो मच मैम. मैम, मेरा और हमारी ऑडियंस को आप प्लीज़ ये बताइए, जो आपकी जर्नी 2008 से 2025 तक कैसी रही है? क्या अप्स एंड डाउन्स आपने फेस करे हैं? क्या हर्डल्स आपने फेस करे हैं? आई वुड से, क्योंकि आपने 2008 से 2025 अभी तक का पूछा, सो दिस इज़ प्राइमरीली आफ्टर आई केम इनटू सिविल सर्विसेज. एंड हाउ आई केम इनटू सिविल सर्विसेज इज़ ऑल्सो वन डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्टोरी. आई वॉज नॉट अ स्टूडेंट जिसको स्कूल में ही आइडिया था, या इनफैक्ट कॉलेज के टाइम पे भी आइडिया था कि सिविल सर्विसेज में जाना है. सो इट केम, द आइडिया केम मच लेटर. But since your question basically deals about my journey after I qualified civil services. So after I qualified in 2008, my cadre which was allotted was Tripura. Manipur Tripura cadre I was allotted. I joined there in June 2009. फिर मेरा वहाँ पे जो tenure रहा, that was like 7.5 years I worked there in Tripura. And I worked in all profiles in the field, starting from my training as Assistant Collector West Tripura. Then I became SDM Ambassa, Dhalai District. Then DM and Collector Gomti. In between I was CEO Agartala Municipal Council. I also had charge of Sarv Shiksha Abhiyan for some time, Joint Secretary Labour. So it has been a varied, different kind of, experience in Tripura. Especially वो special मेरे लिए क्यों रहा, क्योंकि वो एरिया, उस तरीके का एरिया मैंने कभी पहले नहीं देखा था. बिकॉज आई एम बॉर्न इन दिल्ली एंड माई एंटायर एजुकेशन हैज़ बीन बेस्ड इन दिल्ली. सो आई नेवर हैड देन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल टू द ब्यूटिफुल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री. एंड फ्रैंकली जब मेरे कार्डर अलॉट हुए थे, तो आई वॉज नॉट दैट मच हैप्पी, बिकॉज उस टाइम में रोस्टर सिस्टम था. आई वॉज ऑल इंडिया रैंक 13th in my batch, and I got Manipur Tripura cadre, which is actually a challenging cadre. And especially क्योंकि दिल्ली में पली बड़ी थी मैं, तो मैंने कभी वो एरिया डिस्कवर भी नहीं किया था. Even though I very well knew when I was preparing for civil services that I may be posted anywhere. So that was very well known to me कि मेरे को कोई भी सर्विस मिल सकती है, कोई भी cadre मिल सकता है. बट जब आप एक्चुअली में ज्वाइन करते हो, then it becomes a different thing. सो आई ट्राई टू एडजस्ट देयर. वहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, पीपल आर वेरी वार्म एंड दे आर वेरी सिंपल पीपल.
And all throughout my posting, there are few things which I always tried to speak in their language basically. So I learned Bengali when I shifted there. And क्योंकि Tripura has a very beautiful mix of the Bengali population and the tribal population. And even amongst the tribal population, they have 19 major tribes and then few sub-tribes. So the tribal population, they speak Kokborok language. एंड द बंगाली पॉपुलेशन विच इज़ द मेजॉरिटी दे स्पीक बंगाली. तो मैंने बंगाली सीखी वहाँ पे. फूड हैबिट्स थोड़ी डिफरेंट थी. दे ईट दाल भात माछ एंड आई एम अ वेजिटेरियन. सो वहाँ रोटी बनाने के लिए थोड़ा मुझे वहाँ ट्रेन करना पड़ा लोगों को. एंड बट वो क्या है कि एक आई थिंक अ काइंड ऑफ रैपो यू डेवलप विद द पीपल एंड द सोसाइटी दैट एक्चुअली हेल्प मी. आई यूज़ टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस. जब मेरा इनिशियल पोस्टिंग हुआ तो कुछ एरिया ऐसे थे 2009-10 की मैं बात कर रही हूँ कि वहाँ पे टू रीच अप टू द लास्ट माइल वेयर द ट्राइबल पॉपुलेशन स्पेशली वॉज लिविंग, स्पेशली व्हेन आई वॉज इन अम्बासा सब डिविजन. सो you had to travel 8 to 10 kilometers on foot to reach up to the population. So because there was no road connectivity and it was through jungle and आपको रिवर जो स्मॉल रिवोलेट्स हैं जो कि हम लोकल लैंग्वेज में छरा बोलते हैं वहाँ पे, तो छरा और जंगल का एरिया आपको क्रॉस करके जाना है. तो इट वॉज क्वाइट एडवेंचरस ऑल्सो. आई हैड नेवर डन दैट थिंग बिफोर in my life, and all the more I would say it was very insightful to see how people are living, how much challenges they are facing, and it was also a kind of an opportunity for me to contribute, because ये जो एक opportunity थी कि ऐसे लोगों के लिए कुछ करना जिनके पास में बेसिक सुविधाएं भी शायद नहीं थी उस टाइम में, तो उनको पहुंचाना. हाउ डू वी मेक द स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर, द एजुकेशनल सिस्टम वर्क, हाउ, बिकॉज वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हमने देखी कि वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं या टीचर्स हैं या जो सरकारी पूरा सिस्टम में जो स्टाफ पोस्टेड है वो वहाँ रेगुलरली नहीं जा रहा है. सो व्हाट वी डिड वाज दैट आई स्पोक टू द कमांडेंट ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. BSF हैज़ अ very good presence in Tripura. Actually, Tripura has the longest border with Bangladesh in our country. So हमने उनसे बात की और उन्होंने उनको जगह दी रुकने के लिए. So the staff who was posted in the school, the Anganwadi center, the primary health center, veterinary center, PDA shop, so they used to travel from like Monday to Friday. They would used to stay there in the BSF campus. Then they used to come back on weekend and then go back again. So this was like an experiment which we tried in few of the I would say tribal hamlets, and it was quite successful, and it was heartening to see that these services जो पहले नहीं चल रही थी वो चलना शुरू हुई. Then after that, after few years, I came to like Haryana on deputation. I worked in Haryana in Faridabad, Gurugram and Jhajjar district. तो यहाँ पे मेरा 4 years का टेन्योर रहा. देन आई वेंट बैक टू त्रिपुरा इन जुलाई 2020. आई जॉइंड देयर. सो एंड देन लास्ट 2 years से लाइक आई एम इन दिल्ली नाउ. सो दिस जर्नी हैज़ बीन आई वुड से वेरी एनरिचनिंग. हरियाणा का भी अलग एक वर्क कल्चर है, एंड यहाँ पे क्या है कि वो बेसिक प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज पीपल आर क्वाइट वेल ऑफ. बट वॉट वी कुड फाइंड आउट इज़ दैट you have the issue of maybe mindset, especially झज्जर में मेरा जो टेन्योर रहा 1.5 साल का, उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के लिए, क्योंकि झज्जर डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट उस टाइम में था, अगर हम फिगर्स की बात करें, सेंसस के आंकड़ों की बात करें, तो इट हैड वन ऑफ द लोवेस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ एंड द CSR, चाइल्ड सेक्स रेशियो. सो अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, व्हाट आई kind of tried to do was to involve the society and how to hit at their mindset कि लड़कियां क्यों ज़रूरी है और लड़कियों को क्यों बचाना है और लड़कियों को क्यों पढ़ाना है. सो मारी लाडो के नाम से कैंपेन हमने स्टार्ट किया, क्योंकि आपका विमेंस डे को डेडिकेट करता हुआ ये आज का पॉडकास्ट है. सो मेरे को लगा कि उसके बारे में मुझे बताना चाहिए. उमंग एक पहल हमने वहाँ इनिशिएटिव लिया विच वॉज एम्ड एट प्रमोटिंग द menstrual hygiene and health among the adolescent girls in the government schools from class 9th onwards.
तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें कुछ की मैंने, तो मुझे वही लगता है कि सर्विस में रहते हुए यू कैन डू अ लॉट, but of course you are part of a system. So system would have its own plus and minus. How do you leverage through the challenges? That is also very very important. And we all work in a dynamic paraphernalia जिसमें political influence भी है, जिसमें civil society भी है, जिसमें आम जनता भी है, जिसमें और बहुत सारे stakeholders हैं, judiciary है, media है, so you have to balance out these factors, and then you have to keep moving forward with the intention of delivering good for the welfare of people. मैंने जितना सुना उससे मेरे को लगा कि बहुत एक्साइटिंग रही है, चैलेंजिंग भी रही है एंड एडवेंचरस भी रही है। बेसिकली मैम हमारे हरियाणा में, आपने हरियाणा की बात करी कि फीमेल्स को लेके बहुत ज़्यादा होता है, सो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने क्या चैलेंजेस फेस करे प्रिपरेशन पीरियड में? प्रिपरेशन पीरियड में अगर मैं बात करूं तो मेरी जो जर्नी इनटू सिविल सर्विसेज है, लाइक एज आई मेंशन ब्रीफली, कि मैं स्कूल में मेरा बिल्कुल भी ओरिएंटेशन नहीं था कि सिविल सर्विसेज में जाना है। इवन कॉलेज के टाइम तक भी इतना ओरिएंटेशन नहीं था कि सिविल्स में जाना है। सो हमारी फैमिली बेसिकली, माय फादर हैज़ मेरे पापा का जन्म पानीपत के डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव में हुआ था, धर्मगढ़ विलेज, जहाँ पे पापा का जन्म हुआ, और उनकी जो स्कूली शिक्षा है वो वहाँ गांव में ही हुई। बट हमारा जो रिलेटिव्स हैं वो प्राइमरीली हरियाणा बेस्ड ज़्यादा रहे हैं, लाइक पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, इस एरिया में ज़्यादा रहे हैं। तो वो जो एक पेट्रियार्की के बारे में हमने सुना है, तो पेट्रियार्की आई हैड सीन इन माई फैमिली, बिकॉज मेरी कज़न्स का अगर मैं उनका लाइफ का जर्नी देखूँ तो मोस्ट ऑफ देम लाइक दे वर गेटिंग educated up to the level of graduation, and then they were getting married off, because it was not that much of a custom कि बेटियों को बहुत पढ़ाना है। और इनफैक्ट एक ये भी हमारा एक सोसाइटी में बोला जाता था उस टाइम में कि अगर बेटियों को ज़्यादा पढ़ाओगे तो उनका सूटेबल मैच नहीं मिलेगा, यू विल नॉट बी एबल टू गेट देम मैरिड ऑफ ईजीली, कैसे उनकी शादी होगी। चैलेंजेस में एक चीज़ ये है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया 2006 में, तो मेरा एक्चुअली आई फेल्ड, मतलब मैंने प्रीलिम्स दिया, इंटरव्यू दिया, बट आई डिड नॉट गेट एन इंटरव्यू कॉल। सो अब वो नहीं आया तो यू हैव दोज सेल्फ डाउट्स एंड यू फील डीमोटिवेटेड, दिस स्पेल ऑफ नेगेटिविटी, दिस स्पेल ऑफ सेल्फ डाउट, एप्रीहेंशन। बट देन फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को टाइम दिया, अपने आप को एनालाइज किया, वेयर आई फेल्ड, वाई आई फेल्ड, हाउ कैन आई इम्प्रोवाइज, एफर्ट्स, एंड विद योर कॉन्शियस एफर्ट्स आई वुड से यू एक्चुअली कैन इम्प्रूव। और मैंने इम्प्रूव किया, मेरा फिर सिलेक्शन हुआ, एंड 2008 में जब मैंने 2007 का एग्ज़ाम दिया तो रिज़ल्ट 2008 में आया, आई गॉट क्लियर कि कोई मिरेकल कहीं अपने आप से नहीं होता है, ये जो मिरेकल करने की जो शक्ति है, जो पावर है, वो आपके अंदर खुद है। तो इट इज़ हाउ यू चैनलाइज योर एफर्ट एंड एनर्जी टू रीच अप टू द गोल विच यू आर वांटिंग टू। मैम कैसे रेजिस्टेंस को हैंडल करते हो आप, कोई भी पॉलिसी जब अप्लाई होती है, सो स्पेशली इन रूरल एरियाज में, तो उसके बारे में आप बताइए प्लीज़। आई थिंक एज एन ऑफिसर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, आई हैव फेल्ट फ्यू थिंग्स। फर्स्टली तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने रूरल एरिया की बात की, फॉर एग्जांपल कोई एक नया कुछ स्कीम लेके आ रही है, सरकार लेके आ रही है, चाहे वो केंद्र का हो, चाहे वो राज्य सरकार का हो, तो उसमें फॉर एग्जांपल एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशली वाइडनिंग ऑफ हाईवेज, वाइडनिंग ऑफ रोड्स, या कोई नया नेशनल हाईवे बनना है, तो उसमें क्या है कि आसपास की ज़मीनें आपको एक्वायर करनी ही पड़ती हैं। एंड देयर वी हैव एन एक्ट, वी हैव लैंड एक्विजिशन एक्ट, वी हैव रिहेबिलिटेशन का एक प्रॉपर उसके अंदर मैकेनिज़्म है, हियरिंग का through the revenue officials, and then there is an entire machinery and a system which needs to be followed. Now sometimes what happens is that people are not willing, which can be due to various reasons, which can be of course कि उनको alternative जो दिया जा रहा है वो शायद उनको सूट नहीं करता है, या उनको लगता है compensation कम है, या उनको कई बार ऐसा भी होता है कि many a times the agitations which occur in such projects, they are like politically motivated also, कि कुछ लोगों का वोट बैंक शिफ्ट हो रहा है, तो इसलिए दे डोंट वांट दिस पीपल शुड शिफ्ट फ्रॉम दिस प्लेस। सो
इंडिया में हर तरीके का डायनामिक्स काम करता है. तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कम्युनिकेशन शुड बी वेरी क्लियर. कई बार क्या होता है कि प्रोसीजर में भी कुछ लैक्यूनाज आते हैं, कुछ लैक्यूनाज होते हैं, तो उनको भी ओवरकम करना ज़रूरी है. सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज एन ऑफिसर टू ओवरसी how the procedure is being implemented, whether it is being done as per the procedure or the rules or not. तो वो एक अपना एक सुपरविजन लेवल भी थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है, स्पेशली इन द सेंसिटिव एरियाज एंड सेंसिटिव मैटर्स. सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ द की एंड हाउ यू बिल्ड दैट रैपो. कई बार क्या होता है कि एज अ वुमेन ऑफिसर, जैसे मेरी जज्जर में जब पोस्टिंग हुई तो मैं काफ़ी सालों बाद कोई एक वुमेन ऑफिसर एज अ डीसी वहाँ पोस्ट हुई. गोमती डिस्ट्रिक्ट में जब मेरी त्रिपुरा में पोस्टिंग हुई थी 2014 में, वहाँ जब से वो डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुआ तब से लेके अब तक भी नो वन हैड बीन पोस्टेड, नो फीमेल हैड बीन पोस्टेड. तो CEO अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, आई वॉज द फर्स्ट लेडी ऑफिसर टू बी पोस्टेड. पहले लड़कियाँ सिविल सर्विसेज में नहीं आ रही थी, तो देयर वर नॉट so many number of female officers who were there into civil services. Madam Anna Raja Malhotra 1951 में she became the first woman ICS officer. First woman ICS officer Madam Anna Raja Malhotra. And उनका जब इंटरव्यू मैंने, क्योंकि I wanted to know more about her, so in her interviews she has mentioned that when she appeared and when she qualified for the civil services, there was a caveat. There was a condition in her service appointment that if she marries, she will have to resign. So आप सोचिए कि किस तरीके का ये एक restriction था, which we now cannot even imagine, cannot even think of, that if one is marrying, if a female is marrying, she will have to resign as an officer. How this came up and how this was framed, what led the policy makers to have such kind of a restriction. Later on, of course, this was removed. She must have represented, and so you know, वो एक जो मेल बैस्टियन है उसके अंदर अपने आप को प्रूव करना इज़ नॉट ईजी. बट वॉट वी हैव सीन नाउ इज़ दैट फीमेल ऑफिसर्स हैव बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल. दे आर बिकमिंग द चीफ सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट, दे आर हैंडलिंग द वेरियस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जैसे कि आपने अभी विमेंस एंड मेल डोमिनेटिंग की बात करी, सो मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट यही है कि मेल डोमिनेटिंग फील्ड में क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं फीमेल ऑफिसर्स को. आई मीन इफ़ यू आर वर्किंग एज अ डीसी, तो चाहे वो मेल ऑफिसर हो चाहे फीमेल ऑफिसर हो, यू हैव सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी. What makes it a bit difficult is that females के लिए शायद, एटलीस्ट मैंने तो फील किया कई जगह में, that there is a doubt surrounding maybe your capability, or a doubt surrounding your intention also. I would like to mention is that sometimes what happens is that your personal life and professional life do not move in harmony with each other. And there might be some opportunities which you feel that yes, your male colleagues are getting posted to such profiles, but you are not getting posted because maybe you have to go on leave, you are on your maternity period, or you have to take childcare leave, you know. So in the graph of the career there would be some occasions like this. So but it is up to you, how do you prioritize, how do you balance your personal family life along with your work responsibility. And women officers have been doing it very effectively, balancing their work and family responsibility. And I don't think now that, you know, जो एक डाउट है women को लेके सोसाइटी में, वो बहुत कम हो गया है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है. of course the challenges are there, the challenges are going to be there for some more time till we have that gender parity in the society. But I am quite optimistic in the sense कि now things are moving in a positive direction. Yeah. Basically आजकल की जनरेशन के पास मैम अच्छी जॉब्स हैं, उनके पास अच्छे पैकेजेस उनको मिल रहे हैं कंपनीज में, बट स्टिल दे आर नॉट सेटिस्फाई. तो ये मेरा पर्सनल आपसे सवाल है कि आपके लिए सक्सेस क्या है? मुझे लगता है मेरे लिए सक्सेस मीन्स हैप्पीनेस. That from where do you derive your happiness? What makes you happy? It can be your family, it can be your kids, it can be your parents, it can be your work, it can be your project.
सो जो आपने बात बोली कि आजकल स्टूडेंट्स के द वर्किंग प्रोफेशनल्स दे हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, दे आर अर्निंग वेल, बट मे बी वॉट आई फील इज़ दैट दे not everybody is happy. They are working under too much of pressure. Pressure is there to perform, pressure is there to outperform, pressure is there to maybe innovation करना है, but कैसे करना है, they don't have those ideas. So I think कि इतना ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करते हुए let things go off. So if life does not give you your most preferred choice, try and explore what could be the next best. So and if you do not reach up to your the best one, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से आप वहाँ तक ज़रूर पहुँचोगे. This is what I believe. And I feel, and at the end of it, if you're not happy, I don't think you are successful. आपकी इमेजिनेशन एंड विजुअल क्लियर होना चाहिए फ्यूचर में. अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, हार जीत पार्ट है लाइफ का. एंड मैम, हाउ डू यू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी? I always, in my capacity as an administrator, I always tried, जहाँ पे भी मेरी पोस्टिंग हुई है, कि हम सोसाइटी में महिलाओं के लिए काम करें. और ये जो इशू है, ये आंकड़ों से ज़्यादा मुझे लगता है एक माइंडसेट का इशू है. दिस इज़ मोर रिलेटिंग टू योर बिहेवियर, दिस इज़ मोर रिलेटिंग टू प्रेफरेंस ऑफ अ बॉय, प्रेफरेंस ऑफ अ सन इन कंपैरिजन टू अ गर्ल. तो वो अगर है तो वो क्यों है. एंड प्लस जो सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ें एसोसिएटेड हैं. फॉर एग्जांपल, स्टिल पेरेंट्स फील दैट इफ़ देयर गर्ल चाइल्ड इज़ मूविंग इन अ पब्लिक बस, for example, if she is using a public transport for reaching to her school or reaching to her college, and more so if she is going to a coaching class and if she is returning late, then the public space is not safe. So ये किसकी जिम्मेवारी है कि हम ये परसेप्शन को ख़त्म करें कि हमारी पब्लिक स्पेसेस सेफ नहीं हैं. विमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी के इश्यूज़ हैं, ये एक दिन में नहीं ठीक हो सकता है, एक दिन में नहीं हम कर पाएंगे इसको. बट एवरीवन हैज़ टू कंट्रीब्यूट अनलेस एंड अनटिल वी टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सपोज़ कोई लड़का है, वो अगर ये सोचे कि मैं कॉलेज में किसी लड़की के साथ छेड़छाड़, उसे अच्छी लग रही है, उसको छेड़छाड़ कर रहा है, वो ये सोचे कि अगर उसकी सिस्टर है या उसकी मदर है या उसके कोई और फैमिली मेम्बर के साथ में कोई दूसरा लड़का भी ऐसा अगर करता है, तो क्या वो जस्टिफाइड है? So, along with making the places safer for our girls, it is also important to do the training of our boys. Exactly. हमारे घर में जो लड़के हैं, हमारे घर में जो men हैं, उनकी orientation भी करना ज़रूरी है, that they are equal to you in everything. Even they are earning, and sometimes in families, women are earning more than the male counterpart. फिर भी उनको जो है उनको पीड़ित किया जाता है. तो ये कब तक चलेगा और हम ये कब तक अलाउ करेंगे? दिस इज़ अ क्वेश्चन विच सोसाइटी कीप्स टू आस्क फ्रॉम देयर ओन सेल्फ. लास्ट क्वेश्चन है मैम, कि कोई मैसेज आप यूथ को देना चाहें एंड ऑडियंस को देना चाहें हमारे पॉडकास्ट में. ऑडियंस के लिए, यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है कि हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. आपका जो खुद पे विश्वास है, योर पॉजिटिव सेल्फ बिलीफ, दिस इज़ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल एंड वेपन. तो चैलेंजेस आएंगे, सिचुएशंस आएंगी, आपको फेलियर्स भी फेस करने होंगे, बट हाउ डू यू लिवरेज योर स्ट्रेंथ, दैट विल एक्चुअली डिटर्मिन योर सक्सेस. एंड सिंस दिस podcast is dedicated to International Women's Day, there's just 2 lines I would like to dedicate to all the women and in fact to the society. कोमल है कमज़ोर नहीं तू, कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है. कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है. जग को जीवन देने वाली तू सबसे बलशाली है. जग को जीवन देने वाली तू सबसे बलशाली है. So we all know mother, the women, she is the creator of life. So उनका हम सपोर्ट करें, उनको सशक्त बनाएं. Let us all keep nurturing the women power and let us all contribute towards having a positive society which is inclusive and जिसमें इस
जिसमें हम जितना भी हम विकसित भारत की जो बात कर रहे हैं, विकसित भारत 2047 में तभी हम कर पाएंगे जब सोसाइटी का हर इंडिविजुअल पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करे. Exactly, ma'am. It's been an absolute pleasure hearing you on this about incredible journey, your incredible journey. Your story is a reminder that with dedication, we can all make a different world around us. Thank you. If you enjoyed this podcast, do like, share, comment, and also always free to share your thoughts and question with us in given mail address. Happy Women's Day to Thank you, you ma'am, so and much, happy and to Women's all- Day those who are to seeing this all. podcast. To every women out there, you are the strength. So keep that zeal, enthusiasm within your own self, and we all can achieve wonders. We all, as we all say, even sky is not the limit. Yeah, exactly. Thank you.